The presentation on strengthening of tourism sector in Pakistan with special focus on mountain tourism by Mr. Aftab Rana, MD, PTDC. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز صدر صاحب اور تمام مہمانان گرامی، آج ہم یہاں انٹرنیشنل ماؤنٹین ڈے منانے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں. پوری دنیا میں آج لوگ پہاڑوں کے اس عالمی دن کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں، اور اس سال کی جو تھیم ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ سسٹینیبل ماؤنٹین ٹورزم ڈیولپمنٹ، پہاڑوں میں پائیدار سیاحت کی ترقی. یہ وہ ٹاپک ہے جو اس بار سلیکٹ کیا گیا ہے، اور اس کی بہت ہی زیادہ اہمیت ہے کیونکہ پہاڑ ہماری زندگی میں کسی نہ کسی طرح سے جڑے ہوئے ہیں اور ان کا بہت امپورٹنٹ رول ہے، اور ان کے قدرتی ماحول کو، وہاں کی ثقافت کو، وہاں کے لوگوں کی زندگی کو بہتر کرنا تمام بنی نوع انسان کے لیے بہت ہی اہمیت کا حامل ہے. پاکستان دنیا میں چند ایسے ملکوں میں سے ہے خواتین و حضرات جہاں پہ تمام صوبوں میں، تمام ریجنز میں پہاڑ پائے جاتے ہیں. آپ سندھ میں ہوں، پنجاب میں ہوں، بلوچستان میں ہوں، کشمیر میں، جی بی میں یا کے پی میں، ہر صوبے کے اندر آپ کو پہاڑی مناظر نظر آئیں گے. اور یہ جو خوبصورتی اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو دی ہے خوبصورت لینڈسکیپ کی صورت میں، یہ صرف لینڈسکیپ ہی خوبصورت نہیں ہے بلکہ انہی پہاڑوں کی وادیوں میں دنیا کی قدیم ترین تہذیبوں نے جنم لیا اور پروان چڑھی ہیں. 9000 سال کی ہیومن ہسٹری ہمارے پاس پاکستان میں سیاحت کو فروغ دینے کے لیے موجود ہے، جو مہر گڑھ سے شروع ہوتی ہے، موہنجو داڑو سے ہوتی ہوئی، گندھارا سے ہوتی ہوئی ہمارے آج کے اسلامک کرہ میں داخل ہوتی ہے. خواتین و حضرات، یہ جو سیاحت کا پاکستان کے اندر فروغ ہے، یہ گزشتہ 10 سالوں سے بہت ہی برے حالات سے گزر رہا تھا. اور آپ نے دیکھا کہ جب سے پرائم منسٹر عمران خان کی حکومت آئی ہے، بلکہ وہ اقتدار میں آنے سے پہلے سے انہوں نے اپنی مینیفیسٹو میں یہ رکھا کہ ہم پاکستان میں سیر و سیاحت کے فروغ کے لیے کام کریں گے. تو اس ترجیحی بنیاد کو دیکھتے ہوئے ایک بہت ہی ایک پلان طریقے کے ساتھ اس حکومت نے سیاحت کے فروغ کو کام دینے کے لیے اقدامات شروع کیے ہیں. جو سب سے پہلا کام کیا گیا وہ یہ کہ جو کوارڈینیشن کمزوری تھی پاکستان کے اندر 18 امینڈمنٹ کے بعد، اس کو دور کیا گیا. ایک این ٹی سی بی کے نام سے نیشنل ٹورزم ایڈوائزری بورڈ بنایا گیا، جس میں کہ تمام صوبوں کی ریپرزنٹیشن ہے ہائیسٹ لیول کے اوپر. تمام ٹورزم ٹریڈ آرگنائزیشن کے نمائندے چیئرمین کے لیول پہ وہاں پہ موجود ہیں، ساتھ ہی ساتھ وفاقی حکومت کے وہ لوگ جن کا سیاحت کے شعبے سے تعلق وہ موجود ہے. اور اس گروپ نے آتے ہی جو سب سے پہلا کام کیا وہ یہ تھا کہ پاکستان کے لیے ایک نیشنل ٹورزم اسٹریٹجی 2020-2030 بنائی، ایک 10 سال کی ویژن کہ کس طرح سے ہمیں اگلے 10 سال میں سیاحت کے شعبے کو ملک کی معاشی ترقی کا ایک اہم جز بنانا ہے. صرف یہی نہیں بلکہ اس اسٹریٹجی کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ایک 5 سالہ ایک پلان بھی بنایا گیا جس کے اوپر ابھی ہم نے کام شروع کر دیا ہوا ہے. تو وہ ایکشن پلان بھی موجود ہے. ساتھ ہی ساتھ یہ دیکھا گیا کہ سٹینڈرڈز کو کیسے امپروو کرنا ہے. تو نیشنل منیمم سٹینڈرڈ کا ایک ڈاکومنٹ تمام کنسلٹیشن کے ساتھ ڈیولپ کیا گیا. تو یہ ابھی 3 کی ڈاکومنٹس ہیں جو اس وقت ہمارے سیاحتی شعبے کی ترقی کی ویژن اور اس کی اسٹریٹجی کی امپلیمنٹیشن کی گائیڈ لائن فراہم کر رہے ہیں. اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جب سے یہ حکومت آئی ہے، پرائم منسٹر نے ہائیسٹ لیول کے اوپر ایک نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی آن ٹورزم قائم کی ہے، جس کو پرائم منسٹر خود چیئر کرتے ہیں. اور ہر مہینے یہ جو ایکشن پلان ہے اس کے اقدامات کے اوپر پرفارمنس کو دیکھا جاتا ہے کہ کس طرح سے کام ہو رہا ہے. تو 5 اس کے مین ایریاز ہیں جس میں انفراسٹرکچر کو بہتر کرنا، ہیومن ریسورس کو بہتر کرنا، انویسٹمنٹ کو پاکستان میں کیسے لے کے آنا ہے، اپنے آپس کے کوآرڈینیشن کو اور انٹرنیشنل کوآرڈینیشن کو کیسے امپروو کرنا ہے، اور پاکستان کی ایک اچھے طریقے سے مارکیٹنگ کو کیسے انشور کرنا ہے.
सबसे जो पहला कदम लिया गया वो ये था कि जो पीटीडीसी के नाम का एक इदारा गुज़िश्ता 10 सालों से बिल्कुल एक अपाहज हैसियत में था, प्राइम मिनिस्टर ने कैबिनेट में ये फैसला किया कि भाई उसको रिवैम्प किया जाए, उसको रिस्ट्रक्चर किया जाए और एक इफेक्टिव नेशनल टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाए और उस ऑर्गेनाइजेशन के बोर्ड के अंदर तमाम सूबों की नुमाइंदगी को भी लाया जाए। अब इस वक्त जो पाकिस्तान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का बोर्ड है उसमें तमाम सूबों के टूरिज्म सेक्रेटरीज जो हैं वो उसके मेंबर हैं, साथ ही साथ वफाक के इदारे भी हैं और प्राइवेट सेक्टर के लोग भी हैं। तो ये इदारा अभी एक नई फॉर्म के अंदर एक नई जिंदगी के साथ एक नई ऑर्गेनाइजेशन के साथ आगे बढ़ रहा है और मुख्तलिफ जो टूरिज्म के इक़दामात हैं उनके ऊपर काम कर रहा है। एक और जो अहम इनकलाबी फैसला किया गया वो ये था कि जो जितने भी सरकारी रेस्ट हाउसेज हैं, इवन जो पीटीडीसी के मोटल्स हैं, उनको प्राइवेटाइज किया जाए। आपको पता है कि सरकारी रेस्ट हाउसेज अंडर यूटिलाइज होते हैं, प्रॉपर्ली मेंटेन नहीं होते, सर्विसेज अच्छी नहीं होती और वो टूरिस्ट के लिए भी इतने ज़्यादा अवेलेबल नहीं होते। तो उसी स्कीम के तहत अभी पीटीडीसी के जो 37 मोटल्स हैं पूरे पाकिस्तान में, उनको सूबों के साथ कोलैबोरेट करके प्राइवेटाइज किया जा रहा है। एक मरहलावार स्कीम शुरू हो गई है और मकसद ये होगा कि ये 37 प्रॉपर्टीज जो पीटीडीसी की बेस्ट लोकेशन पे हैं उनके स्टैंडर्ड्स को हाई किया जाए, वहाँ पे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को लाया जाए और जो वहाँ पे टूरिस्ट आए उनको अच्छे क्वालिटी की स्टैंडर्ड की सर्विसेज फराहम की जाए। साथ ही साथ एक जो सबसे बड़ा इशू था कि सस्टेनेबिलिटी नहीं है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फंडिंग की, तो प्राइम मिनिस्टर ने एक एंडोमेंट फंड क्रिएट किया है पीटीडीसी के लिए जिससे सारी प्रमोशनल एक्टिविटीज को फंडिंग की जाएगी। 1 बिलियन रुपीस उसमें फेडरल गवर्नमेंट ने डाले हैं और तमाम सूबे भी अपनी सवाबदीद के मुताबिक उसके अंदर फंड डाल रहे हैं और ये जो प्रॉपर्टीज प्राइवेटाइज की जा रही हैं इसमें से भी जो शेयर वफाक को मिलेगा वो इस एंडोमेंट फंड में जाएगा। तो ये एक बड़ी अमाउंट मुख्तस कर दी गई है जिसके प्रॉफिट से बहुत सारी जो सियाहत की सरगर्मियां हैं उनके ऊपर काम किया जाएगा और ये काम शुरू हो चुका हुआ है। ये एंडोमेंट फंड का पूरा एक सेपरेट एक डिवीजन क्रिएट कर दिया गया। साथ ही साथ हुकूमत ने यह फैसला किया कि पाकिस्तान का एक टूरिस्टिक इमेज इंटरनेशनल मार्केट में प्रमोट करना है। उसके लिए हमें एक ब्रांड चाहिए, जिस तरह दूसरे दुनिया के ममालिक अमेजिंग थाईलैंड, मलेशिया, ट्रूली एशिया इस तरह से एक थीम के अंडर काम करते हैं, तो पाकिस्तान के लिए भी इस तरह का एक पूरा एक ब्रांड भी डेवलप कर दिया गया है जिसको कि लॉन्च करने के लिए हो सकता है जनवरी में अगले साल में उसकी एक बहुत हाई लेवल की सेरेमनी होगी और इस ब्रांड को बाकायदा तौर पर लॉन्च किया जाएगा। साथ ही साथ टूरिज्म की जो मालूमात हैं उस तक रसाई लोगों की आसान करने के लिए एक ई टूरिज्म पोर्टल भी कायम कर दिया गया जिसमें कि तमाम मालूमात, तमाम फैसिलिटीज और लोग वहां पे आके अपना एयर टिकट, अपना बस टिकट, अपना होटल, अपने टूर पैकेजेस हर चीज बुक कर सकेंगे। ये भी तैयार कर दिया गया है और इसको इसी ब्रांड के साथ प्राइम मिनिस्टर जो है वो लॉन्च करने वाले हैं। और इसके साथ साथ अभी एक पूरी स्कीम बनाई गई है कि किस तरह पाकिस्तान का इमेज इंटरनेशनल जो बड़े बड़े एक्सपोज होते हैं वहां जाके प्रमोट करना है ताकि गैर मुल्की जो सियाहत है वो पाकिस्तान में बढ़े। इस सिलसिले में जो सबसे पहला कदम आपने देखा दुबई में बहुत बड़े स्केल के ऊपर पाकिस्तान का पेविलियन वर्ल्ड एक्सपो में 6 माह के लिए वहां पे लगा हुआ है और वो पाकिस्तान के इमेज को प्रमोट कर रहा है। इसी तरह अभी जर्मनी में मार्च के अंदर आईटीबी का जो सबसे बड़ा टूरिज्म फेयर होता है वहां पे हम पूरे पाकिस्तान का एक इंटरनेशनल डेलीगेशन लेके जा रहे हैं, तमाम सूबे और प्राइवेट सेक्टर उसमें मौजूद है। तो बहुत सारी अभी इसके अंदर एक स्कीम है जो कि ओवर द ईयर हम इसको लॉन्च करने वाले हैं अगले साल में, अगर कोविड के हालात बेहतर हैं। साथ ही साथ पीटीडीसी को ये भी टास्क दिया गया है कि जो इस्लामाबाद कैपिटल सिटी है, क्योंकि अभी सूबे अपने अपने सूबे में टूरिज्म को प्रमोट कर रहे हैं, तो किस तरह हमें अपने कैपिटल सिटी को टूरिज्म के लिए एक अच्छा शहर बनाना है। तो एक इंटीग्रेटेड टूरिज्म डेवलपमेंट स्ट्रेटजी बनाई गई है जिसमें कि सारे स्टेक होल्डर्स को हमने कंसल्टेशन किया है और इस स्ट्रेटजी का मकसद ये है कि हम कैपिटल को भी टूरिस्ट फ्रेंडली सिटी बनाएं। जैसे दुनिया के दीगर कैपिटल हैं, वो लंदन है या पेरिस है, वो टोक्यो है, इस अंदाज में हम कि मुख्तलिफ महकमे मिलकर अपना अपना काम करें लेकिन एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट से टूरिज्म को प्रमोट किया जाए। ये जो स्कीम है इसके ऊपर हमने तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ कंसल्टेशन करके स्ट्रेटजी डेवलप कर लिया है और वो अभी काबीना को हम भेज चुके हैं कि वो इसको अप्रूव कर दे और इस पर काम शुरू हो जाए। ये जो कोविड का टाइम था इस दौरान में आपको पता है इंटरनेशनल टूरिज्म बहुत कम था, लेकिन हमने कोशिश ये की कि अपने फॉरेन मिशन जो है हमारे उनके साथ मिलके मुख्तलिफ कंट्रीज के जो वहाँ के टूर ऑपरेटर हैं और यहाँ के ऑपरेटर हैं उनके आपस में B2B मीटिंग्स करवाई जाए।
अभी तक बहुत सारी मीटिंग्स हम करवा चुके हैं, कुछ और पाइपलाइन में है, ताकि बिजनेस लिंकेजेस डेवलप किया जाए। ऑल्दो अभी आना जाना मुश्किल है इन कंट्रीज में, लेकिन ये है कि इस टाइम को इफेक्टिवली यूटिलाइज किया गया है और मजीद अभी आने वाले दिनों में इस किस्म के जो वेबिनार्स हैं वो तमाम सेंट्रल एशियन रियासतों के साथ, चाइना के साथ, यूरोपीय ममालिक के साथ हम कर रहे हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रवाबत जो है वो बिजनेस लेवल के ऊपर बढ़े। ख़वातीन व हज़रात, इस वक्त जो गवर्नमेंट का मेन फोकस है वो ये कि प्राइवेट सेक्टर को आगे लाया जाए और वो आगे बढ़े और टूरिज्म के बिजनेस को चलाए। गवर्नमेंट फैसिलिटेटिव के रोल में उनको जो भी सपोर्ट दे सकती है वो फराहम करेगी। आपने देखा होगा कि इस गवर्नमेंट ने आते ही एक सबसे जो बड़ा इनकलाबी कदम ये लिया कि जो हमारा सिख हेरिटेज, सिखों के जो मुकद्दस तरीन मकामात हमारे पास हैं, उन तक रसाई को आसान बनाया, वहाँ फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव किया। उनके ऊपर अभी पूरा एक हमने हेरिटेज ट्रेल का एक पब्लिसिटी मटीरियल भी बनाया है। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये जो नई फैसिलिटीज़ क्रिएट की गई हैं सिख हेरिटेज टूरिज्म को प्रमोट करने से, इसमें बड़ी तादाद में सिख यात्री पाकिस्तान में सिर्फ इंडिया नहीं बल्कि यूरोप की जो बहुत बड़ी मार्केट है वहाँ से आना शुरू हो जाएंगे। अभी हमने एक स्टडी कंडक्ट किया है तो पता ये चला कि तकरीबन $1.5 बिलियन सालाना हम सिर्फ यूरोप से आने वाले सिख टूरिज्म से कमा सकते हैं, अगर थोड़ा हम इसको मजीद फैसिलिटेट कर सकें। इसी तरह एक और बड़ी मार्केट हमारे पास जो हमारे पहाड़ी इलाके सवात और चकदरा और मर्दान के साथ साथ मिलते हैं, ये सारा गंधारा का इलाका था जहाँ पे अभी 600 से ज्यादा हिस्टोरिकल साइट्स को डॉक्यूमेंट किया गया है, जिनकी बुद्धिस्ट रिलीजन के साथ बहुत इंपॉर्टेंट हैसियत है। खासतौर के ऊपर ये महायाना बुद्धिज्म है वो यहाँ से ओरिजिनेट हुआ और बड़ी तादाद में दुनिया के फॉलोअर्स मौजूद हैं। तो उसकी फैसिलिटेशन के ऊपर अभी केपी के सूबे में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे काम हो रहा है और साइट्स की डेवलपमेंट को बेहतर किया जा रहा है। अब चंद एक इकदाम जो स्पेसिफिकली माउंटेन टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए और ये जो पायदार टूरिज्म जिसका जिक्र किया जा रहा है वो ये है, प्राइम मिनिस्टर ने ये टास्क दिया है कि जो भी पहाड़ों में भी टूरिज्म डेवलप करना है, इट शुड बी एज पर द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड और वो पायदार तरक्की के असूलों पे हो, हैपहैज़र्ड डेवलपमेंट नहीं होनी चाहिए। तो 3 मॉडल डिसाइड किए गए हैं जो कि इंटीग्रेटेड टूरिज्म जोन के तौर पे कायम किए जा रहे हैं। 4 जोन इन द केपी के, इसी तरह 4 जोन जीबी में और इसी तरह 4 जोन पंजाब में और लेटर ऑन बाकी सूबों में भी। इसमें अभी 6 कंपनी का कंसोर्शियस काम कर रहा है जो कि इंटरनेशनल लेवल के एक्सपीरियंस को भी यूज कर रहे हैं और लोकल नॉलेज को भी यूज कर रहे हैं। तो थीम बेस्ड रिजॉर्ट डिजाइन किए गए हैं। फॉर एग्जांपल ये आप देख रहे हैं, ये घनौल का रिजॉर्ट है जो शोगरान के पास है। हुकूमत का ये प्लान है कि जो भी डेवलपमेंट होगी एक पूरा मास्टर प्लान होगा और एक डिजाइन के तहत होगा। वहां पे आपको उल्टी सीधे बिल्डिंग नजर नहीं आएंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट देगी और इन्वेस्टमेंट आके प्राइवेट सेक्टर करेगा। ये स्कीम ऑलरेडी फाइनल स्टेज पे है और केपी की गवर्नमेंट इसको लॉन्च करने जा रही है। तो 4 जो रिजॉर्ट्स मॉडल रिजॉर्ट्स बनेंगे, ये आप देख रहे हैं। घनौल का जो है वो रिक्रिएशन थीम और नेचर बेस्ड टूरिज्म के ऊपर है। ये जो रिजॉर्ट है ठंडियानी का, ये आप देख रहे हैं, ये भी एक रिक्रिएशन थीम के ऊपर डिजाइन किया गया है और ये पूरा एक मॉडल माउंटेन टूरिज्म का रिजॉर्ट होगा जैसे आप यूरोप में या दीगर मुल्कों में देखते हैं। इसी तरह से आप ये मंक्याल का रिजॉर्ट देख रहे हैं जो कि कालाम के पास है। ये स्पेसिफिकली इको टूरिज्म और वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी को प्रमोट करेगा। इसका भी पूरा मास्टर प्लान डेवलप हो गया हुआ है। और चौथा जो बहुत इंपॉर्टेंट रिजॉर्ट है, ये चित्राल के एरिया में माडागलश की वैली है जिसको विंटर टूरिज्म के लिए डिजाइन किया गया है। स्कीइंग और विंटर स्पोर्ट्स, ये पाकिस्तान का पहला और वाहिद एक लार्ज स्केल विंटर स्पोर्ट्स रिजॉर्ट होगा जो कि कायम होने जा रहा है। इसके अलावा दीगर बहुत सारे इकदाम इन 2-2.5 सालों में किए गए हैं। कैंपिंग पॉड्स लगाए गए हैं, जीबी में टूरिज्म पुलिस बनाई गई है, एक 1422 ऑनलाइन हेल्पलाइन बनाई गई है जिस पे लोग कॉल करके किसी भी किस्म की टूरिस्ट रिलेटेड मालूमात 24 आवर हासिल कर सकते हैं। होटल्स की ऑक्यूपेंसी सोशल मीडिया के जरिए, वेदर कंडीशन, ये सब इंफॉर्मेशन अभी पोर्टल्स के ऊपर मौजूद है जो लोग एक्सेस कर सकते हैं। गिलगित बल्तिस्तान में कम्युनिटी बेस्ड इको टूरिज्म पे काम हो रहा है कि किस तरह कम्युनिटी को इंसेंटिव देना है। तो 12 इलाके मुंतखब किए गए हैं। होपर का इलाका है, उसमें बगरोट का इलाका है, उसमें रुपल का इलाका है, उसमें केच के साथ 3 इलाके और हैं जहाँ पे लोकल कम्युनिटी को छोटे कर्जे देके, ग्रांट्स देके टूरिज्म प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व किया जाएगा। ये जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये ऑलरेडी लास्ट ईयर एक प्रोजेक्ट होपर में जो चालू हो चुका है, ये उसकी तस्वीरें हैं।
इसी तरह पहली दफा कोशिश की गई है कि पहाड़ों के एक एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट डिक्लेयर किया जाए। स्कर्दू आप सब लोग मीडिया पे आजकल देख रहे हैं, इज नाउ गोइंग टू बी एन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। पहली फ्लाइट बहुत जल्दी वहां पे लैंड करने वाली है। पहली दफा हुआ है कि इस्लामाबाद के अलावा फैसलाबाद, सियालकोट, कराची, लाहौर से भी डायरेक्ट फ्लाइट स्कर्दू को दी गई हैं और इंशाल्लाह स्कर्दू एक बड़ा टूरिज्म का हब बनने जा रहा है। एयर सफारी को लॉन्च किया गया है। पहाड़ी इलाकों में एडवेंचर टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए इस साल हुकूमत ने 50% रिडक्शन ड्यूटी पे दी है एडवेंचर इक्विपमेंट को इंपोर्ट करने के ऊपर, और कोई भी प्री फैब अगर आप कोई कैंपिंग रिजॉर्ट स्पॉट्स लाना चाहते हैं उसके ऊपर, तो ये बहुत बड़ी सहूलत है। एक नया एयरलाइन लाइसेंस जारी किया गया है जो कि कम पैसों से लोग ले सकते हैं। छोटे जहाजों के साथ 4 लाइसेंस जारी कर दिए गए हैं। अभी पीआईए की मोनोपोली नहीं होगी कि सिर्फ वही गिलगित में या स्कर्दू में जाएगा, बल्कि ये एयरलाइन भी अगले साल अपना ऑपरेशन शुरू कर रही है। तो कंटिन्यूअसली ग्रोथ की तरफ हम जा रहे हैं। हमारा डोमेस्टिक टूरिज्म ऑलरेडी 1 मिलियन का फिगर जीबी में क्रॉस कर चुका है। फॉरेन टूरिज्म भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते बढ़ते जो एडवेंचर के लिए लोग आते हैं 10,000 पे पहुंच गया है। तो उम्मीद की जा रही है इंशाल्लाह आने वाले सालों में मजीद बहुत बेहतरी आएगी। प्राइवेट सेक्टर की इंकरेजमेंट से पूरा चैनल इस वक्त टूरिज्म को डिस्कवर पाकिस्तान के नाम से 24 आवर प्रमोट कर रहा है, और टूरिज्म इस वक्त पाकिस्तान की इकोनॉमी में 5.9% जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहा है। 3.8 मिलियन जो लोग हैं उनका डायरेक्टली इनडायरेक्टली टूरिज्म के साथ जॉब्स का रिश्ता है, और 116 बिलियन रुपए जो है वो हम फॉरेन टूरिज्म से कमा रहे हैं। तो उम्मीद की जा रही है कि इंशाल्लाह आने वाले सालों में ये जो फिगर है ये डबल होएगा, और पाकिस्तान का जो सियाहत का शोबा है वो पाकिस्तान की मुल्की मईशत में एक बहुत ही अहम रोल अदा करेगा। और उसके लिए हम पाकिस्तान की जो मौजूदा हुकूमत है उनके बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने दिलचस्पी ली और इस शोबे को तरक्की देने के लिए बहुत सारे जो इक़दाम हैं वो उठाए हैं। बहुत शुक्रिया जी। इंशाअल्लाह